Okay, dear students, good morning. Today we are going to look about class 9th English medium supplementary unit number 3 entitled as Ishwaran the Storyteller. Up to now in this unit, so far we have discussed about the main character of Mahendran and his cook named Ishwaran. Ishwaran having a habit of reading Tamil stories, and whenever he just having a conversation with other people, that can be seen of his own habit of reading. Apart from this, in this unit we have discussed about several stories been discussed by the Ishwaran in front of Mahendra. Mahendra was a kind of person who was just busy in working throughout the day, and at the evening time both of them having a dinner together by having this kind of leisure stories of Ishwaran. In many of the stories of Ishwaran, he would try to add suspense, thrilling notes, and a kind of interesting conclusion. In that proceeding, so far now we have discussed about one of the story was telling by the Ishwaran about that elephant gone mad and was not controlled by the Mahavat of that elephant itself. And that elephant went into the town from street to street. It was just crushing all the hawkers, fruit stalls, and some certain clothes shop as well. In that proceeding, in the same story, we have been also told that suddenly that elephant entered into the school playground where Ishwaran used to study by breaking the compound wall of the school ground. Everyone, just to save their life, get at the safe side. Some of the students locked themselves into the classrooms, and certain teachers just went upstairs, and from the terrace they were having a sight, or they were, rather I should say, having a demonstrative strikes of that elephant, which was crushing everything, shrubs, flowers, trees, everything. Suddenly, Ishwaran got an eye on one of the leg of an elephant, where he saw there was something stuck in his leg. Ishwaran determined, he just downstairs and went up to the ground in front of that elephant, where the elephant was also looking at him in an anger. At that time, certainly, as soon as that elephant would like to strike on that Ishwaran got a stick and just pulled out of certain things that was stuck in between the legs of an elephant. By putting that something or just beating a kind of stick over there, certainly that elephant got struck down. The last part in which we have discussed this much. Now today we are going to look from there where we stop. Now at this point Ishwaran leave the story at the same point जब वो हाथी नीचे गिर जाता है, फेंटेड हो जाता है, इस जगह पे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, वहां पे अटक जाता है ईश्वरन और बोलता है, क्या बोलता है, अनफिनिश स्टोरी को रखकर एंड गेट अप मम्बलिंग. टू मम्बलिंग मतलब टू से समथिंग क्वाइटली, धीरे धीरे जैसे बोलते हो ना, राइट, धीरे धीरे ममर करना है, मम्बलिंग जिसको बोलते हैं, राइट, धीरे से बोलना. वो क्या बोल रहा है, आई विल बिकम बैक,
I will be come back after lighting the gas and warming up the dinner. वो अपने महेंद्रन मालिक जो है उसको बोल रहा है कि सर मैं आ रहा हूं, जो डिनर है उसको थोड़ा सा गर्म करना है, वार्मिंग अप। तो वो मैं गैस को लाइट करके आता हूं, जला के आता हूं। महेंद्रन who had been listening with a rapt attention, महेंद्र जो कि बहुत एब्जॉर्ब, रैप्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? रैप्ट का मतलब होता है बिल्कुल डीपली एब्जॉर्ब करके जैसे सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जो स्टोरी सुनता है उसको रैप्ट अटेंशन बोलते हैं। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वहां पे स्टोरी को आधा छोड़ के जला जाता है। तो महेंद्र का जो बिल्कुल अटेंशन था वो वहां पे आधा अधूरा रह जाता है। When he returned, जब ईश्वरन वापिस आता है, ईश्वरन would not pick up the thread of the story. ईश्वरन जहां से उसने स्टोरी, वो हाथी फेंट हो गया, वहां पे अटकाई थी ना, अब वहां से वापिस नहीं उठाता। थ्रेड ऑफ का मतलब जो सीक्वेंस आती थी वहां से स्टोरी को नहीं उठाता है। तब महेंद्र जो उसका मालिक है वो कहता है उसको, महेंद्र would have to remind him that the conclusion of the story was पेंडिंग। वो बोल रहा है कि भाई रुक जा, अभी आधी स्टोरी तूने छोड़ दी, उसको पहले कंप्लीट करो, राइट? तो जो ईश्वरन है वो स्टोरी को कंप्लीट करता है। वो बोलता है वेल अ वेटरनरी डॉक्टर, अ पर्सन और अ डॉक्टर हु जस्ट लुक टुवर्ड्स एन एनिमल्स, राइट? एनिमल्स की खैरियत करने में, उसकी हेल्थ चेक करने में जो बंदा काम करता है उसको वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। Was summoned to revive, to revive मतलब उसको ठीक करने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको बुलाया गया। ईश्वरन would sing casually, बिल्कुल धीरे से स्टोरी को वो एंड कर देता है। जितनी स्टोरी को पिकअप दी थी उसने, जितना थ्रिलिंग क्रिएट किया था, सस्पेंस क्रिएट किया था, लेकिन एट द एंड उसको बिल्कुल सिंपली एंड कर देता है। 2 days later, 2 दिन बाद, it was led away by its महावत to the jungle। वो बोलता है कि 2 दिनों के बाद उसी एलिफेंट को जैसे ही वो ठीक हो गया, उसको जंगल में जाके छोड़ दिया गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? ये दोनों क्वेश्चन महेंद्रन ईश्वरन को पूछता है, ईश्वर को पूछता है कि भाई तूने ये सारी चीजें कैसे मैनेज की, एलिफेंट को नीचे कैसे गिराया, ऐसी कौन सी तेरे पास नॉलेज थी कि जिससे आपने उसको एक ही हिट किया, एक ही बार, एंड ही जस्ट फेंटेड आउट। तो वो चीज महेंद्र उसको पूछता है। इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट। अब ईश्वरन महेंद्र को कहता है कि कोई एक जापानीज कला है जहां पे मुझे मालूम है कि भाई कराटे या फिर जू जीसू नाम की एक कला आती है जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज होती है। आई हैड रीड अबाउट समवेयर, ईश्वरन बोलता है कि मैं पुस्तकें पढ़ता हूं तो उसमें कहीं पे मैंने पढ़ा था। इट टेम्पररीली, बिल्कुल टेम्पररीली मतलब कुछ पलों के लिए पैरालाइज कर देता है नर्वस सिस्टम को। जब ऐसे इस जगह पे कोई ऑकवर्डली बॉडी पार्ट पे अगर आपको कोई हीट कर देता है तो थोड़ी देर के लिए आप फेंटेड हो जाते हो, तो वैसी ही ये कला इसने पढ़ी थी, तो उसी का यहाँ पे अप्लाई उसने कर दिया और वो कंफर्म करता है। यूसी आपको मालूम पड़ा, इसीलिए वो एक ही हिट से एलिफेंट को फेंट करने में सक्सेसफुल हुआ। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग some stories packed with the adventure, horror and suspense। अब महेंद्र का एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि जहां पे वो ईश्वरा द्वारा कही गई सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर और एडवेंचर से भरी स्टोरीज न सुनता हो। Whether the story was credible, credible का मतलब होता है able to believe, मतलब कभी कभार क्या होता है कोई हेवन और सुपरनेचुरल स्टोरीज होती है जिस पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वही चीजों को हम क्रेडिबल बोलते हैं। और नॉट मतलब कोई स्टोरी में हम बिलीव कर सके या ना कर सके, महेंद्र को तो सिर्फ मेंटली रिलैक्स होना
था। तो ईश्वरान के द्वारा कही गई हर कोई स्टोरी को वो बहुत अच्छे से सुनता था। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल मतलब जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता। आप किसी की स्टाइल इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन आप उसकी जो बोलने की कला होती है, उसका जो नॉलेज होता है, द बिहेवियर होता है, वो चीज शायद आप कॉपी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे वो चीज बताइए, वे इन विच इट वॉज टोल्ड। स्टोरी कहने की एक अलग सी कला होती है। बहुत सारे लोग स्टोरीज टेल करते हैं, कहते हैं, लेकिन हर एक स्टोरी में हमें मजा नहीं आता है। कभी कभार कुछ स्टोरीज हमें बोरिंग सी लगती है और हम बीच में ही स्लीपी मोड में चले जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी होती है कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters. महेंद्रा के क्वार्टर्स के अंदर वो शायद उसको टीवी की एब्सेंस महसूस नहीं करवा रहा। कभी कभार आप अकेले होते हो और स्टोरी टेल करने वाला अगर कोई नहीं होता तो आप टीवी पकड़ते हो और उसमें कुछ अपने आप का एंटरटेनमेंट करते हो। लेकिन अगर कोई आपके साथ ऐसा हो कि जो आपको ऐसी कुछ स्टोरीज सुनाए, जो कहीं पे कुछ पढ़ा हो, तो ये आपको टीवी से भी ज्यादा एंटरटेन करता है। One morning when Mahindra was having a breakfast, ईश्वरन asked, एक बार एक सुबह जब महेंद्रा अपने सुबह का ब्रेकफास्ट ले रहा था, तब महेंद्र ने उसको कहा कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल डिनर टुनाइट। आज क्या शाम को मैं कुछ नया स्पेशल करूं डिनर के तौर पे? सर, आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। आज बहुत पवित्र दिन है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र दिन है, शायद कोई त्योहार वगैरह होगा। डे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन मतलब जो त्योहारों पे हम अमूमन करते हैं वैसी चीजें, कि भाई त्योहारों पे हम नई नई स्वीट्स लाते हैं, कुछ पकवान बनाते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेडिशन वी यूज्ड टू मेक अ न्यू डिश। कुछ नया खाना हम बनाते हैं, जो रूटीन में बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग, राइट। प्लीज डियर स्टूडेंट, डू नॉट फॉरगेट टू हैव अ टेक्स्ट बुक व्हाइल लिसनिंग दिस और अंडरस्टैंडिंग, यस, लर्निंग दिस वीडियो, राइट। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट certain words that I have highlighted on the board as well. Thank you. Okay dear, now today we are going to look about class 9th supplementary unit 3 part 6 Ishwaranand storyteller. Up to now we have discussed lot of things about how the Ishwaran's story were, how it catches his master Mahendra, how both of them leading their lives, and apart from this, certain incidents were discussed by the Ishwaran in a form of stories and enjoyably listening by the Mahendra. Now we are going to discuss about the sixth part, in which Ishwaran would like to just ask Mahendra that there are certain auspicious days are to come, and on that days generally people used to prepare a delicious and out of routine dishes to have it for the food. As now my dear student, you can understand that Diwali, one of the most beautiful and auspicious festival of India, which is being celebrated throughout the India. None of the corner remain or untouched with this festival. It doesn't matter what caste, what states, people, everybody just used to celebrate it.
and on this occasion we also prepared a kind of different snacks. Every day we used to prepare a new food to eat for those 10 days. We go, we meet each other and enjoy it together. Here Ishwaran exactly asked the Mahendran that, वही चीज पूछ रहा है कि this is near about an auspicious occasion to come. Shall I make something new for the dinner tonight? And he also wanted a touch that it is a tradition that we prepared a various delicacies food to feed the spirit of our ancestors today. Ishwaran would like to tell the Mahendra that on this occasion we used to make certain delicious food and we try to offer our ancestors. हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको हम ये चीज प्रोवाइड करते हैं. My dear students, I and you personally believe that however we become a modern, but anyhow we have to make alive our traditions and culture, and on the part of that we used to celebrate certain festivals as well. Yes, now recently there was one festival of 15 days and आपको लगेगा डियर स्टूडेंट कि कौन सा सब फेस्टिवल गया, तो हमारे इंडियन रिलीजियस बुक अगर आप पढ़ो और हमारे जो एल्डर पीपल है, ग्रैंडफादर मदर, उनको पूछो आप तो मालूम पड़ेगा, वो बोलेंगे भाई श्राद्ध गए. राइट? इन दिस 15 days of celebration, श्राद्ध का सेलिब्रेशन, उसके अंदर हम हमारे एंसेस्टर, पूर्वज, मतलब दादा हो या उनके भी दादा, उनके भी पिता, जो भी हो, इस तरह से हमारे जो यस चली आती है पेरी एंसेस्टर्स की, उनको हम सुबह सुबह में अच्छा अच्छा डिशेस प्रिपेयर करके हम प्रोवाइड करते हैं. हमारे घर की छतों पे जाते हैं और गुजराती में कहिए तो वास नाखिए छे. राइट? तो ये ऐसे ही एक ऑस्पिशियस फेस्टिवल या डे के बारे में यहाँ पे ईश्वरान महेंद्र को बताता है और उसके रिलेटेड वहां पे फूड प्रिपेयर करता है. That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary. culinary का मतलब होता है कि आपके घर में या पड़ोस में या फिर जो होटल आप यूज करते हो वहां पे या मोटल में जाते हो वहां पे कुछ बंदे होते हैं जो अच्छा खजांची होता है, मतलब खाना बनाता है ना. तो यहाँ पे आर्ट ऑफ फूड मेकिंग के लिए महेंद्र जो है वो ईश्वरा को पैट करता है कि बेना शाबाश, क्या बढ़िया चीज बनाई है. ठीक है ना. अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश मतलब शोई टू मेक शो. राइट? किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ा कर चीजों को जब बताना होता है तब ये चीज आती है. ऑन अकाउंट ऑफ इन्वॉल्विंग, टू इन्वॉल्व मतलब टू सिंक इनटू, टू ज्वाइन विद, इसको हम इन्वॉल्विंग बोलते हैं. द सुपरनेचुरल वर्ल्ड टू. महेंद्र ये सारी चीजों ईश्वरा के द्वारा जो बोली गई है उसको सुनते हैं और ईश्वरा वही चीजों को कुछ सुपरनेचुरल मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड जो स्पिरिट वगैरह होती है उससे रिलेटेड वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है. यू नो सर, ईश्वरा ने महेंद्र को ये स्टोरी
सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के साथ मतलब स्पिरिट और गोड्स के साथ कनेक्ट करके बतानी शुरू की। दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वेयर दे हैव क्वार्टर्स, जहां पे अभी वो रह रहे हैं, ये एंटायर एरिया जो है वो पहले बरियल ग्राउंड था। सर व्हाट डज इट मीन बाय बरियल ग्राउंड? वेयर डेड्स आर बरीड, जब लोगों को दफनाया जाता है, वैसे जिसको हम ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं। आज कंपनी जिस जमीन पे बनी है वहां पे पहले लोगों को दफनाया जाता था। He started, ईश्वरन ने कहना शुरू किया, महिंद्रा was jerked out। jerked out मतलब अचानक से जैसे उसको जॉल्ट लगा हो, धक्का लगा हो। जो अपनी प्लीजेंट चेयर में इस तरह से आराम से बैठा था और डे ड्रीमिंग एंजॉयमेंट ले रहा था, तब वहां से वो अचानक से ड्रिफ्ट होता है। I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path। अब महेंद्र बोल रहा है कि भाई तू मुझे मत बता, मुझे मालूम है, मैं जब पहले ही दिन यहाँ पे आ रहा था तो मैंने अपने रास्ते में वहां पे एक स्कल देखा था, मुंडी जिसको बोलते हैं, जो ऊपर का मांस वगैरह स्किन वगैरह होता है वो सब खत्म हो चुका होता है, सिर्फ हड्डियां बचती है, हड्डियों का वो ढांचा बचता है, उसको यहाँ पे सिर वाले का पार्ट जिसको हम स्कल बोलते हैं। Even now I come across a number of skulls and bones। आज भी बहुत सारे स्कल्स और बोन्स मेरे रास्ते में आते हैं। सेड ईश्वरान ने ऐड किया, ये महेंद्र बोल रहा है, उसमें ईश्वरान ने ऐड किया कि भाई सर वो बहुत पहले की बात है, आज भी आते, ऐसा नहीं कि भाई उस दिन आए थे फिर खत्म हो गए। He went on to narrate how he saw sometime ghosts at night। अब ईश्वरान बोल रहा है महेंद्र को, यार कभी कभार मुझे तो गोस्ट भी दिखते हैं, भूत वगैरह दिखते हैं रात को। I am not easily frightened by these things। वैसे तो मैं ऐसी चीजों से डरता नहीं हूं, ऐसा ईश्वरान बोल रहा है, किसको? महेंद्र को। I am a brave fellow, वैसे तो मैं बहादुर हूं, but one horrible ghost, एक ऐसा डरावना भूत है, of a woman, वो भी एक वुमन का है, लेडी का है, which appear on at midnight of full moon। पूनम की मध्य रात्रि को ये घोस्ट निकल के आता है। इट इज एन अगली क्रिएचर, बहुत डरावना गंदा सा भयानक सा दिखता है। एंड मैटेड हेयर, उसके हेयर बहुत जैसे चिपके हुए और बड़े बड़े लंबे घने, है ना। एंड श्रिवेल्ड मतलब फियरफुल फेस था उसका, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फेटस इन इट्स आर्म, जैसे किसी ऑफस्प्रिंग मैमल का बच्चा उसने पकड़ा हो, उस तरह से गंदा दिख रहा था। महेंद्र शिवर्ड at the description and interrupted rather sharply। महेंद्र अचानक से थोड़ा सा भयभीत हो जाता है और उसको अचानक से रोकता है कि भाई रुक जा। डिस्क्रिप्शन जब वो दे रहा था, कौन? ईश्वरन जब ये डिस्क्रिप्शन गोस्ट का दे रहा था, तब महेंद्र बोला भाई रुक जा, ठहर जरा ठहर। यू आर अ क्रेजी ईश्वरन, तू पागल है क्या? There are no such things as ghost and spirit। महेंद्र बोल रहा है भाई देख, आजकल की दुनिया में स्पिरिट या गोस्ट जैसी चीजें नहीं होती है। It is an all figment of your imagination। ये सब आपके इमेजिनेशन की बिन जरूरी बातें हैं, जो आप इमेजिन करते हो और अपना इमेजिनरी एक क्रिएचर बनाते हो, गोस्ट बनाते हो, ऐसी चीज है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, जब चेक करो जरा अपना दिमाग, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और आपको आपके दिमाग को भी चेक करवाने की जरूरत है। आई होप डियर दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूनिट बेटर। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।